Hello everyone. Let's start a new chapter, Chemical Kinetics. Chemical Kinetics. So, before starting the chapter, we should know that what is the need of this chapter, why we are starting this chapter, or what does actually the term means. So, kinetics is a word which came from kinesis. एंड काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर. सो गाइस, एक्चुअली in order to study a chemical reaction, chemists need three answers. Okay, so first is whether the reaction is visible or not. Whether the reaction is visible or not. Chemist को इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए होते हैं if chemist want to read a chemical reaction completely. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए केमिस्ट इन तीन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर दैट थ्री क्वेश्चंस. फर्स्ट इज वेदर द केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. रिएक्शन होगी या नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. What is the extent of the reaction? Or we can say when equilibrium will reach. When equilibrium occur. And the third and which is very important question is what is the speed of reaction? What is the speed of the reaction? So in order to study a chemical reaction, chemists need the answer of these three questions. The very first question is whether the reaction will occur or not. Whether the reaction is feasible or not. होगी कि नहीं होगी. So guys, we have read about thermodynamics. So thermodynamics chapter में हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर था, इट टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था क्लास 11th का, इट टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. कैसे बताया था? डेल जी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा देन द रिएक्शन इज फिजिबल, एंड इफ द डेल जी वैल्यू इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 देन इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें थर्मोडायनामिक्स से मिल गया. ठीक. नाउ व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सो ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और व्हेन इक्विलिब्रियम ऑकर. ठीक है, रिएक्शन कहाँ तक जाएगा, इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, इन क्वेश्चन का आंसर्स हमें कहाँ मिले थे? द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, केमिकल इक्विलिब्रियम. सो इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और व्हेन द इक्विलिब्रियम अकर. ओके, नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द केमिस्ट, दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. सो thermodynamics tells us about the feasibility of reaction. Chemical equilibrium tells us about the extent of reaction or when the equilibrium occur. But the question that what is the speed of reactions remains as it is. इसका आंसर हमें किसी ने नहीं दिया. ठीक है, what is the speed of reaction? So in order to study the speed of reaction, we have to read about chemical kinetics. So इसका आंसर हमें कौन देगा? The chapter name chemical kinetics. ठीक है, the chapter name chemical kinetics.
यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. एंड व्हाई वी आर रीडिंग दिस, बिकॉज इन ऑर्डर टू रीड अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली, अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना है, सो वी शुड हैव द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स is a branch of chemistry. It is a branch of chemistry. Let me write here. It is a branch of chemistry which deals with rate of reaction, which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction and factors affecting rate of reaction. ठीक है, so chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with rate of reaction or the factors affecting rate of reaction. Now what does rate means? Rate मतलब speed. I hope you all have read this term in physics. ठीक है, so rate means what? Speed. ठीक है, so in this chapter we are going to deal with rate of reactions and the factors. कौन कौन से factors है जो reaction की speed को affect करते हैं. ठीक है, so this is chemical kinetics. So before starting, let us see some reactions and the speeds. Like for example, you know the reaction of rusting of iron. Before that, we'll talk about ionic reactions. ठीक है, speed of some reactions I'm going to tell you. So ionic reactions. Ionic reactions, these reactions are very fast. ठीक है, ये जो reactions होती है बहुत speedily होती है, very fast reactions होती है. Like for example, I have taken silver nitrate and sodium chloride in 2 separate containers. ठीक है, so as I mix these two in one pot, instantly the reaction happens and what will form? AgCl precipitate हो जाएगा plus sodium nitrate. ठीक है, so ये जो ionic reactions होती है, they occur at a high speed. Instantly they produces the product. जैसे ही हम mix करेंगे, instantly we are getting the product. So the speed of the reaction is very fast. ठीक है, as well there are some reactions like if you are talking about rusting of iron. ठीक है, so rusting of iron is slow process, बहुत slow process है, it takes a lot of time. Nextly, if we talk about conversion of diamond into graphite. ठीक है, हमें पता है कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, diamond shall convert into graphite. This thing we have proved in chapter thermodynamics. ठीक है, so thermodynamics ने बोला कि this reaction is feasible. ठीक है, feasible means what? Diamond graphite में convert होता है. But what about the speed? So when we come to know the speed is very 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 slow. इतना slow था that one could mislead कि reaction हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये इतना स्लो रिएक्शन है कि ये पॉसिबल ही नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम्स लगता है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दैट डायमंड इज फॉरएवर. ठीक है, सो
द रिएक्शन इज ऑकरिंग एट वेरी 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 स्लो, हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है. सो हेंस वी यूज टू कॉल इट एज डायमंड इज फॉरएवर. सो दिस इज अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शंस. लाइक आयनिक रिएक्शंस ऑकर एट अ हाई स्पीड. If we are talking about rusting of iron, so this is a slow process. Diamond, yeah, it is true. Thermodynamically it is proven कि diamond graphite में convert होता है, but इसको इतना ज़्यादा time लगता है कि हम ये बोलेंगे कि reaction हुआ ही नहीं, ठीक है. So these are the some example. Now let's see how to find out the speed of reaction or how to calculate the rate of reaction, ठीक है. How to calculate speed of reaction. So you must be knowing that how we are calculating the speed of automobiles. ठीक है, हम automobiles की speed को कैसे calculate करते हैं, और बचपन में हमने speed का फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है. तो कैसे निकालते हैं, distance covered upon time taken. डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. हम हमारे व्हीकल्स का स्पीड निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. सो सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज change in concentration of species, change in concentration of species. species में आप कुछ भी लिख सकते हैं, whether reactant or product, ठीक है, divided by change in time, or you can say time taken, ठीक है, you can say time taken, ठीक है. change in concentration of species upon change in time or time taken. Now the question arises, why I use the word concentration here. So let us see an example. Suppose कोई reaction है जिसमें A is converting into B. What does it mean? A क्या हो गया? A is reactant and B is product. A is reactant and B is product. So the concentration of reactant, ठीक है, जब मैंने reaction start नहीं किया था, जब reaction start नहीं हुई है, when the time is 0. So the concentration of reactant is 10 mole. ठीक है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट मैंने कितना लिया है, 10 मोल, ठीक है, और रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं हुआ होगा. सो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0 मोल. क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0 मोल. बट आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए आ गई है, सो व्हाट हैपन, रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाएगा और जो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है. सो रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी मेरे पास रिएक्टेंट बचा है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल, और यहां पर क्या हो गया, 8 मोल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, 8 मोल प्रोडक्ट बन गया. सो what is actually happening during this reaction, reactant का concentration क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, ठीक है, 10 से 2 आ गया. so reactant का concentration क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, ठीक है, decrease हो रहा है. and if we are talking about product, so product का concentration increase हो रहा है. समझ में आ रहा है. यहाँ पर जब chemical reaction start नहीं हुई थी, at that time
ए का कंसेंट्रेशन था 10 मोल और बी का कंसेंट्रेशन था 0 मोल, बिकॉज रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. क्लियर? एंड हेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0 मोल. बट आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद रिएक्शन प्रोसीड हुई, 10 में से 8 मोल्स प्रोडक्ट बन गए एंड 2 मोल रिमेन इन द रिएक्टेंट. ठीक है? तो यहां पर जब रिएक्शन हो रही है तो चेंज किस में आ रहा है? लाइक जब व्हीकल चलती है तो चेंज किस में आता है? डिस्टेंस में, है ना? वैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो चेंज किस में आ रहा है? कंसंट्रेशन में. ठीक है? कंसंट्रेशन हमें पता है, MOL मतलब मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है. ठीक है? तो चेंज किस में आ रहा है? कंसंट्रेशन में आ रहा है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट, सो देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है? सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. ठीक है? पहले कितना था? स्पीशीज में आप रिएक्टेंट भी रख सकते हैं या प्रोडक्ट भी रख सकते हैं. ठीक है? रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिसअपियर होगा, कंज्यूम होगा. ठीक है? प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा, फॉर्म होगा, अपीयर होगा. लाइकवाइज. ठीक है? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन और यू कैन से चेंज इन टाइम. ठीक है? चेंज इन टाइम. तो चेंज इन टाइम मतलब चेंज इन टाइम. ठीक है? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है? सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल. First we'll write rate of reaction for this equation. Let's see how to write the rate of reaction. So as I have taken this equation earlier, I'll put the same thing here. ठीक है? क्या था फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? डेल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है? सो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, सो रेट ऑफ रिएक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है? सो इफ यू वांट टू राइट इट इन रिएक्टेंट फॉर्म, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है. सो वी विल राइट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. ए मीन्स रिएक्टेंट. सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? डेल ए बाय डेल टी. ठीक है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. एज आई टोल्ड यू, रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है? तो आपको यहां पर सामने माइनस का वैल्यू देना पड़ेगा. माइनस डेल ए बाय डेल टी. नाउ सी, हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने कंसंट्रेशन वर्ड मेंशन किया था. ठीक है? सो कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. ठीक है? सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है? सो इफ यू वांट टू राइट और इफ वी वांट टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant, so it is
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस चले बाय डेल टी। कंजम्पशन की जगह डिसअपियरेंस भी कई सारी बुक में लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। नाउ इफ वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा आंसर, डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी। समझ में आ रहा है, डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। आपको पता है ना ये जो चेंज है ये कैसे निकलेगा, डेल सी मुझे कैलकुलेट करना है, सो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, लाइकवाइज चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन चेंज इन टाइम। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, यहां पर निगेटिव साइन नहीं लगेगा, सिर्फ रिएक्टेंट क्योंकि वो डिक्रीज होता है यहां पर हम निगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। नाउ आई वांट टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। What is the speed of reaction or what is the overall rate of reaction? See here, actually हो क्या रहा है, 1 mole of A produces 1 mole of B. ये 1 क्या है, stoichiometry coefficient है, it means 1 mole reactant is consuming and 1 mole product is formed. 1 mole reactant consume हो रहा है, simultaneously 1 mole product form हो रहा है, ठीक है। 2 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सेम हो रहा है, जितना डिक्रीज होगा उतना ही वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम है, जो इसके सामने वाले वैल्यू है दैट इज सेम, इट मींस जितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इन दिस केस जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, दैट इज माइनस डेल ए बाय डेल टी, और इफ यू राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स सेम है। 1 मोल डिक्रीज होगा तो 1 मोल प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, एज देयर इज डिक्रीज इन रिएक्टेंट द सेम वैल्यू विल बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन में आप कोई भी वैल्यू रखें दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। ओके, now this is the reaction and I want to write the rate of reaction for this equation. So see here, actually what happens, 1 mole of A reacts with 3 mole of B to produces 2 mole of C. What does it means? 1 mole reactant 1 mole A consume होगा तो 2 mole C produce होगा, 3 मोल बी कंज्यूम होगा तो 2 मोल सी प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स व्हाट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी
is 3 times as compared to rate of consumption of A. ठीक है, rate of formation of C is 2 times as compared to rate of consumption of A. जिस स्पीड से A कंज्यूम हो रहा है उसकी डबल स्पीड से C फॉर्म हो रहा है. इट मीन्स व्हाट, यहाँ की जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1. तो यहाँ की स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं आएगा. लाइक इन प्रीवियस केस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ रहा था whether you are taking reactant और प्रोडक्ट. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, सो इफ आई वांट टू राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. ठीक है, इसके केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ये क्या आएगा, डेल ए बाय डेल टी माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है कंज्यूम हो रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मुझे बी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, अब मुझे अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी. ठीक है, सो इफ आई वांट टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की वैल्यू एक ही चाहिए, तो इन तीनों की वैल्यू को एक बनाने के लिए मुझे इन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी हाउ. सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है. ठीक है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, यहाँ पे माइनस है. सो रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे तीनों की वैल्यू इक्वल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से वैल्यूज को मैं डिवाइड कर दूंगी. बी के सामने क्या है, 3, सो 1/3. ठीक है, माइनस 1/3 डेल बी बाय डेल टी. और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट पे माइनस नहीं लगता है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल टी. ठीक है, सो इफ यू वांट टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमें तीनों में इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, सो वी हैव टू डिवाइड द टर्मिनोलॉजी बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. समझ में आ रहा है? तो अब ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, यहाँ पे इन तीनों का वैल्यू सेम आएगा. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, बट हियर द वैल्यू इज डिफरेंट. सो माइंडेड guys, the question will definitely be there from this section in your examination. आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ कंजम्पशन या डिसअपियरेंस पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट द फॉर्मूलाज. ठीक है, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है, और जब सिर्फ कंजम्पशन या फॉर्मेशन निकालना है, सो एट दैट टाइम नो नीड टू डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, rate of reaction is actually, we can calculate in two ways. Just now we learn how to calculate rate of reaction. So rate of reaction को हम दो तरीके से calculate कर सकते हैं. First, average rate of reaction.
another is instantaneous rate of reaction. So instantaneous means what? Instantaneous rate of reaction. ठीक है. So average rate of reaction. Average कब निकालते हैं? जब हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल हो. ठीक है. लाइक मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 hours to 4 hours. ठीक है. तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. एवरेज कब निकालेंगे? जो चेंज हम ले रहे हैं, जो टाइम इंटरवल जब ले रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा होगा. ठीक है. सो उस टाइम पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. तो बड़ी वैल्यू के लिए आई होप यू माइट हैव रेड दिस थिंग्स इन मैथमेटिक्स. बिग चेंज के लिए हम डेल यूज करते हैं. ठीक है. तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो ये फॉर्मूला हम कब पुटअप करेंगे? जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं. ठीक है. जब हम टाइम का वैल्यू T2 माइनस T1 रख सकते हैं. लाइक यू आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें इनिशियल आपका टाइम है, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल आपने 2 hours लिया है और फाइनल आपने लिया 4 hours. तो चेंज कितने का आ रहा है? 2 hours का. ठीक है. अब वी कैन से 0 सेकेंड से हमने स्टार्ट किया 600 सेकेंड तक. ठीक है. तो इनिशियल टाइम था 0 सेकेंड, फाइनल हो गया 600 सेकेंड. बट इफ somebody ask you the rate of reaction at exactly 300 सेकेंड. ठीक है. मुझे इंटरवल में नहीं, जब पर्टिकुलरली 300 सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ. ठीक है. सो अगर हमें एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एट पर्टिकुलर टाइम, तो उस टाइम पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट टर्म वी विल यूज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सो गाइज देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला. सिर्फ एक सिंबल का चेंज है. बिग चेंज में आप डेल लगाएंगे, स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डी यूज करेंगे. ठीक है. यू माइट हैव रेड दीज थिंग्स इन मैथमेटिक्स. जब हमारा डेल टी टेंड्स टू 0 और वी कैन से द टाइम इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, तब हम क्या लिखेंगे? स्मॉल डी. चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल डी टी. तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पे जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है तब हम लिखेंगे स्मॉल डी. कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं C अपॉन dt. ठीक है. यहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं. मैंने यहाँ पे C यूज किया है, तो C इटसेल्फ डिनोट्स कंसंट्रेशन, इसलिए बॉक्स नहीं भी लिखे तब भी चलेगा. बट इट्स गुड इफ वी पुट दिस. ठीक है. सो दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकालेंगे. इंटरवल मतलब बिटवीन 2 और एग्जैक्ट at that time if we want rate of reaction, so that time we'll use the word instantaneous rate of reaction. ठीक है. Let's see some example. ठीक है. Consider this reaction. So if I want to calculate instantaneous rate of reaction, ठीक है. So rate of consumption लिख लेते हैं. Rate of consumption of A at any time. ठीक है. At any time T is equal to minus स्मॉल डी ए बाय स्मॉल डी टी. इंस्टेंटेनियस के लिए ना
if we want to calculate rate of formation, product के लिए हम क्या use करेंगे, formation. So rate of formation of product B at any time t is equal to dB by change in concentration of B upon dt. ठीक है. Now if we want to calculate rate of reaction, instantaneous rate of reaction, rate of reaction at any time t, ठीक है, rate of reaction at time t we can say, ठीक है, rate of reaction at time t. तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा. तो या तो आप रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखे या तो आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, यू विल गेट द सेम आंसर. सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रादर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. और जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो स्मॉल डी की जगह आप क्या लिखेंगे, कैपिटल डेल लिखेंगे. ठीक है. सो ठीक है, मैं यहाँ पर एवरेज रेट का लिख देती हूँ. एवरेज रेट में सिर्फ चेंज होगा माइनस डेल. ओके, विल राइट वंस, कॉपी दिस. सो लेट्स राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सो क्या हो जाएगा, एवरेज मतलब एवरेज रेट में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट A इज इक्वल टू माइनस डेल A बाय डेल T. Likewise, rate of formation of B, product B is equal to del B by del T. ठीक है. And if we write rate of reaction, ROR means rate of reaction, so it will be like del A by del T is equal to, change क्या आ रहा है, हमने यहाँ पर del यूज किया because the change is quite big, and in case of instantaneous we are using D. ठीक है. So this is, so today I am leaving here only. From tomorrow onwards we are proceeding this lecture, or in next lecture we are going to deal with how we can calculate rate of reaction graphically. Okay, so that's all for today. Okay, bye bye, have a good day.